So today we are going to talk about PBR 322 plasmid vector. Okay. So आज हम बात करेंगे PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर के ऊपर. हमें पता है कि प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो एक कैरियर जैसे काम करता है. कैरियर ऑफ व्हाट? कैरियर ऑफ द डीएनए इंसर्ट, ताकि वो डीएनए इंसर्ट को ले जा सके एक सेल से दूसरे सेल तक एंड दे कैन मेक द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ओके. सो इसीलिए आज हम बात करेंगे PBR 322. सो इन आवर प्रीवियस वीडियो ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर and its example we have studied the examples of the plasmid vector, right? So plasmid vector के previous video का link आपको description में मिल जाएगा. I would recommend that you go first and check that video out and then come to this PBR 322 plasmid vector ताकि आपको समझने में आसानी हो. Okay. Now coming back to this. So examples of the plasmid vector as we have learned. सो प्लाज्मिड जो है, ये सारे जो प्लाज्मिड है जैसे कि हमने पढ़ा, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड वेक्टर, ठीक है, प्लाज्मिड वेक्टर होने के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है. सो ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, प्लाज्मिड्स हैविंग दिस कैरेक्टरिस्टिक, दे आर मेड इन द लेबोरेटरी इटसेल्फ. ओके, दे आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग. ये नेचुरली ऑकर प्लाज्मिड्स नहीं है, इनको नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड्स को मॉडिफाई करके लैब में बनाया जाता है. Clear? So these vectors are made in the laboratory by modifying the naturally occurring plasmids, ताकि उनके पास वो सारे कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि वो एक गुड वेक्टर बन सके, एक गुड कैरियर बन सके. Okay, so the some of the example that we have studied in our last video, that is this PBR 322 plasmid vector, PBR 327 plasmid vector, PUC 8 plasmid vector and PGEM 3Z plasmid vector. Okay. So in this video we will talk about PBR 322 and PBR 327 plasmid vectors. Okay. So coming to this PBR 322 plasmid vector. Now this is a reconstructed plasmid. Okay, PBR 322 is a reconstructed plasmid. As I have said, all these plasmid vectors are made in the laboratory using the naturally occurring plasmid. So this is becoming a reconstructed plasmid. Okay. Now this plasmid is widely used and is having 4,362 base pairs and the entire base sequence is known. Okay. So since this is made in the laboratory, so all the sequences are completely known of this vector, which makes it very easy to understand in which sequence or which portion the DNA insert has been inserted. Okay. So it has 4,362 base pairs and is constructed from 3 plasmid. Now this plasmid is made from 3 naturally occurring plasmids. ओके, लाइक आई सेड कि जो ये प्लाज्मिड वेक्टर्स है इनको जो है नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड से इनको बनाया जाता है. तो इनके पास ये PBR 322 तीन ऐसे नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड से बनाए गए हैं. नाउ लेट अस लुक एट द पिक्चर ऑफ दिस PBR 322. ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं देर इज अ ORI origin of replication. Okay, now here we can see a gene which is ampicillin resistance gene and here we can see another gene which is tetracycline resistance gene. Okay, now beside this we can see there are restriction sites where the restriction enzymes can act upon. Okay, so these are the restriction sites, unique restriction sites, so that the restriction enzymes can act upon. Clear? So this is the example of the PBR, this is the feature of the PBR 322, or we can say the intro of the PBR 322. Now coming to the derivation of this name, that is PBR 322. Okay, so this PBR, this comes from, P comes from plasmid, B refers to the name of the scientist Bolivar, which is Francisco Bolivar Zapata, and R comes from the scientist Rodriguez, which is Raymond L. Rodriguez. Okay, so these are the two scientists who have developed this PBR 322, and the this 322, this numeral 322 has been given to distinguish this plasmid from the other plasmid that has been developed in the same laboratory. Okay, so एक ही लैब में बहुत से तरह के जो है प्लाज्मिड वेक्टर्स बनाए जा रहे हैं और उनको नामकरण दिया जा रहा है ताकि हम एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर को आइडेंटिफाई कर सके. राइट, हम ऐसा ही तो करते हैं ताकि इजीली आइडेंटिफाई हो. जैसे कि PBR 322 एक हो गया, PBR 325 एक हो गया, PBR 327, PBR 328. ओके, सो ऑल दिस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी इटसेल्फ और इसलिए इनको जो है न्यूमरल दिया गया है उनके पीछे ताकि हम इजीली से आइडेंटिफाई कर सके. ठीक है, तो PBR
322 उनका हो गया P से प्लाज्मिड, B से बॉलीवर, R से रॉड्रिगस एंड 322 इज़ द नंबर जितने समय में उनको जो है किया गया है, जितने अटेम्प्ट में वो इनके पीछे लगा दिया गया है. ओके, सो दिस इज हाउ द नेम PBR 322 हैज़ बिन डिराइव्ड. Clear? Now coming to the regions that are present in the PBR 322. Now there are 4 types of regions that are present in PBR 322 plasmid vectors. Okay, we will talk about it one by one. Now first coming to the region which is the origin of replication, which is very important. हर प्लाज्मिड में origin of replication होने चाहिए. ये origin of replication जो है हमारा ORI, ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है जो इमेज में ORI है. So this ORI, this is derived from the plasmid PMBI. ओके, PMBI प्लाज्मिड से ये इसको डिराइव किया गया है, इस ORI को, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को. एंड दिस प्लाज्मिड इज क्लोजली रिलेटेड टू द नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड COL-EI. ओके, ये PMBI जो है नेचुरली ऑकरिंग प्लाज्मिड COL-EI से बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है. सो यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन लिया गया है. सेकेंड रीजन है जीन्स दैट कॉन्फर्स द रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, जो हमने जीन पढ़ा है वहाँ पर हमने इमेज में देखा ऑलरेडी, वो जीन जो कि एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस कॉन्फर करते हैं, रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी जो है प्रोवाइड करते हैं. सो 2 टाइप्स ऑफ जीन्स वी हैव सीन. जीन रीजन वी हैव सीन, दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस AMPR and tetracycline resistance, that is TETR. Okay, this ampicillin resistant gene is derived from the plasmid RI. Okay, plasmid RI जो कि naturally occurring plasmid है, and gene TTR, that is tetracycline resistance gene, is derived from plasmid R6.5. Okay, so from here we can see that already 3 naturally occurring plasmids has been used to make this PBR 322. Okay, so this is the number 1, this is number 2, and this is number 3. Okay, so 3 types of plasmids, naturally occurring plasmids, have been taken to make this PBR 322 plasmid vector. Clear? Now these both are natural populations of antibiotic resistant plasmid. Now these 2 plasmids are naturally occurring plasmids, and these genes, gene ampicillin resistance and tetracycline resistance, they are also known as markers or used as markers. So they are also known as selectable markers. Okay, so you should not get confused कि अरे markers कौन सा है. So markers are this antibiotic resistance gene ही selectable markers हैं. क्लियर? सो ये हो गए हमारे 2 रीजन. अभी आते हैं हम थर्ड रीजन पे, दैट इज यूनिक रिकॉग्निशन साइट फॉर 20 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. यूनिक रिकॉग्निशन साइट 20 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के काम करने के लिए सबके लिए एक यूनिक रिकॉग्निशन साइट मौजूद है, जो हमने फिगर में देखा, फिर से देखेंगे बाद में. ओके, इन द लेटर ऑन विल अगेन सी इट. सो हर एक के लिए 20 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, दिस आर द एंजाइम्स, इनको काम करने के लिए अलग अलग यूनिक रिकॉग्निशन साइट्स रीजन भी है इस प्लाज्मिड के अंदर. ओके, नाउ सम ऑफ दिस साइट्स लाइज विद इन द मार्कर जीन्स. ये इनके कुछ साइट्स मतलब यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स जो है मार्कर जीन्स के बीच में भी हैं. ओके, ये परमिट करते हैं एन ईजी सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म सेल्स हैविंग रिकॉम्बिनेंट PBR 322. ओके, मार्कर जीन के बीच में जो रिकॉग्निशन साइट्स है ये बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है काम प्रोवाइड करते हैं हमें. दिस मेक्स इट ईजी फॉर द सिलेक्शन ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म सेल. सपोज DNA इंसर्ट को हमने 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स के बीच में इंसर्ट कर दिया है, फॉरेन DNA को इंसर्ट कर दिया है. नाउ दिस विल हेल्प इट और मेक इट ईजियर टू सिलेक्ट दिस ट्रांसफॉर्म सेल्स. इस ट्रांसफॉर्म सेल को सिलेक्ट करने में ये हमें बहुत काफ़ी मदद करता है. नाउ यहाँ पर 2 तरीके के केसेस हैं. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ केसेस. एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं या फिर केसेस की मदद से समझते हैं. ठीक है, तो द इंसर्शन ऑफ द DNA फ्रैगमेंट इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 एंड PVU1 places the DNA insert with the marker ampicillin resistant gene. ठीक है, मतलब क्या हुआ, अगर हम DNA फ्रैगमेंट को इंसर्ट करते हैं यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 एंड PVU1, ये जब इन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं हम फॉरेन DNA को इंसर्ट करने के लिए वेक्टर के अंदर, तो वो DNA इंसर्ट कहाँ पर जाता है, कहाँ पर प्लेस हो जाता है,
विद द मार्कर जीन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बगल में या फिर एडजेसेंट में जो है ये डीएनए इंसर्ट को जो है प्लेस कर देता है। कौन? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम PST1 एंड PVU1। अब प्लेसिंग का टेक्निक ऐसा नहीं है कि बस उठाया प्लेस कर दिया, इसमें भी बहुत सारा प्रोसेस है। इजी वे में प्लेसिंग ही बोलेंगे। ठीक है, सो दिस PST1 और PVU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अगर हम यूज़ करके डीएनए इंसर्ट को इनपुट कराते हैं प्लाज्मिड के अंदर, दिस विल प्लेस द डीएनए इंसर्ट विद द मार्कर जीन दैट इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अब ये डीएनए इंसर्ट क्या करेगा? बैठा हुआ है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बगल में, सो दिस विल मेक द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नॉन फंक्शनल। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन को नॉन फंक्शनल कर देगा, मतलब वो और एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंस नहीं कर पाएगा वो जीन। तो कंसिक्वेंटली जो होगा वो है बैक्टीरियल सेल्स विद सच रिकॉम्बिनेंट PBI322। ओके, सो PBI320 में रिकॉम्बिनेशन आ चुका है क्योंकि हमने उसका जो है एक जीन को नॉन फंक्शनल कर दिया है, तो दैट आल्सो बिकम्स द रिकॉम्बिनेंट। सो बैक्टीरियल सेल जहाँ पर इस तरीके के रिकॉम्बिनेंट PBI322 या फिर रिकॉम्बिनेंट जो है हमारा डीएनए बन गया है, ये एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगे, will not grow in the presence of ampicillin but will grow successfully in the presence of tetracycline। मतलब क्या है? ये एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेंगे जबकि टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेंगे। क्यों एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करेंगे? ऑब्वियसली क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट का जो जीन है वो तो नॉन फंक्शनल हो चुका है। ओके, अब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही अगर नॉन फंक्शनल है तो हाउ कैन अ बैक्टीरिया सर्वाइव इन एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक? करेक्ट। तो एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में जो है ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल्स जो है ये यहाँ पर सर्वाइव नहीं करेंगे और टेट्रासाइक्लिन में आराम से सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन में जो है ये आराम से सर्वाइव कर लेंगे, इसलिए इनको कहा गया है। इस तरीके से जो है हम इसको ईजिली सिलेक्ट कर सकते हैं दूसरे बैक्टीरियल सेल से जो कि ट्रांसफॉर्म्ड नहीं है। ठीक है, सिमिलरली और एक केस देख लेते हैं जहाँ पर इंसर्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट किया गया है लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, सो द इंसर्शन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट इनटू द प्लाज्मिड यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 एंड SAL1, ये प्लेस कर देता है डीएनए को विद द मार्कर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, सो पिछले वाले में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करा था PST1 एंड PVU1 जो कि डीएनए इंसर्ट को कहाँ पर प्लेस किया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बगल में या फिर विद द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अभी हमने सेम चीज़ दूसरे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से किया जो कि है BAMH1 एंड SAL1। ये क्या करता है? डीएनए फ्रैगमेंट को प्लेस कर देता है विद द मार्कर जीन टेट्रासाइक्लिन। ओके, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बगल में बिठा दिया था, यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के एडजेसेंट में या इसको प्लेस कर दिया, किसको? डीएनए इंसर्ट को। ओके, नाउ दिस मेक्स, तो ये इसको क्या करेगा? ये डीएनए इंसर्ट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को जो है नॉन फंक्शनल कर देगा। ओके, सो दिस विल मेक द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नॉन फंक्शनल। अब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन क्या है? एक तरह का मार्कर है, और मार्कर क्या करता है हमने अभी भी पढ़ा। ठीक है, दिस मार्कर्स हेल्प्स इन द इजी सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, राइट। तो ये ट्रांसफॉर्म बैक्टीरियल सेल्स जिनके पास इस तरीके का रिकॉम्बिनेंट आ चुका है, ये एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि उनका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस करने का जो प्रॉपर्टी था वो नॉन फंक्शनल हो चुका है, तो ऑब्वियसली वो टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन एम्पिसिलिन के प्रेजेंस में ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के रिकॉम्बिनेंट फैक्टर्स यूज़ करके जो है हम इजीली ट्रांसफॉर्म सेल्स को निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Clear? So this process allows an easy selection of the single bacterial cell that have this recombinant DNA। इस तरीके के recombinant DNA होने के बैक्टीरिया को हम इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम विद द सिलेक्टेबल मार्कर जीन यूज़ करके जो है हम आसानी से सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, सपोज ये आपको सिलेक्शन करना है, ये भी थोड़ा सा बता देती हूँ। सपोज आपको सिलेक्शन करना है इस रिकॉम्बिनेंट जो है PBI322 को, ये वाला केस आपको जो है आइसोलेट करना है। ठीक है, तो व्हाट विल डू आफ्टर द टेट्रासाइक्लिन जीन जब नॉन फंक्शनल हो जाता है, ये बैक्टीरिया को आपको क्या करना है? आपको प्लेट में ग्रो कर लेना है। ठीक है,
अगर प्लेट में आपका जो स्पेसिफिक मीडिया है उस अगर प्लेट में जो है आपको इसको ग्रो कर लेना है। और इस प्लेट में ग्रो करने के पहले आपको दे देना है एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। ओके, इस केस में एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक आपको दे देना है। इस एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक में ट्रांसफॉर्म सेल्स ग्रो कर जाएंगे, जो ट्रांसफॉर्म सेल्स नहीं रहेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। ओके, ट्रांसफॉर्म सेल जो नहीं रहेंगे वो ग्रो नहीं करेंगे। सिर्फ ट्रांसफॉर्म सेल से ग्रो करेंगे यहाँ पर, और इन्हीं ट्रांसफॉर्म सेल्स को जो है हमें यहाँ से इनका कॉलोनी लेकर के दूसरे प्लेट में कर देना है और इनको जो है मल्टीप्लाई कर लेना है। ओके, इस तरीके से जो है आसानी से बैक्टीरियल सेल्स हैविंग दिस रिकॉम्बिनेटेड डीएनए को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली पिछले वाले केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लेट में जो है हम अगर प्लेट में हम क्या करेंगे पिछले वाले के लिए, जहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के साइड में जो डीएनए इंसर्ट प्लेस हो रहा था उसमें हम इसमें क्या करेंगे, कौन सा एंटीबायोटिक डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक इसमें डालेंगे हम। ओके, अब टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो इसमें क्या होगा, हमारा सिर्फ जो है एम्पिसिलिन में ग्रो करने वाले इसमें ग्रो हो जाएंगे। एम्पिसिलिन नहीं, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करने वाले ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे नंबर के रीजन्स पर PBR 322 में जो है। द फोर्थ रीजन इज निक बॉम रीजन। ओके, नाउ दिस बॉम रिफर्स टू द बेसिस ऑफ मोबिलिटी। बेसिस ऑफ मोबिलिटी की वजह से इसको बॉम कहा गया है, निक बॉम रीजन। नाउ दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोबिलाइजेशन और सेल टू सेल ट्रांसफर ऑफ द प्लाज्मिड। ठीक है, ये मोबिलाइजेशन में बहुत मदद करता है, प्लाज्मिड का मोबिलाइजेशन में, और हेल्प करता है सेल टू सेल ट्रांसफ़र ऑफ द प्लाज्मिड। एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मिड को किस तरीके से हम ट्रांसफ़र करेंगे वो भी निक बॉम रीजन काफ़ी हद तक हेल्प करता है। ना मंकी सेल्स में पाया गया है कि मंकी सेल्स में ये रीजन जो है, मतलब निक बॉम रीजन जो है, रेप्लिकेशन एफिशिएंसी ऑफ द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को इंटरफेयर करता है। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्या है, प्लाज्मिड है, मतलब प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन एफिशिएंसी को निक बॉम रीजन जो है क्या करता है, इंटरफेयर करता है इन द मंकी सेल्स। इट हैज़ बीन फाउंड। क्लियर। नाउ यहाँ पर हम जो है इमेज थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से PBR 322 का। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें इको आ रहा है, जैसे हमने पढ़ा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़े रेस्ट्रिक्शन साइट्स देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में PVU1 है, यहाँ पर PST1 नहीं दिया है, यहाँ पर ये PST1 होना चाहिए। एनीवेज, तो ये है हमारा PVU1 यहाँ पर, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के रीजन के अंदर हम देख सकते हैं BAM-HI एंड सेल आई। ओके, ये जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, ये डीएनए इंसर्ट को, जैसे मैंने कहा कि विथ द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के साथ डीएनए इंसर्ट को पुट कर देते हैं। अब सिंस इनका रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा है, देख सकते हैं हम। ठीक है, ये जो सिलेक्टेबल मार्कर्स है इनका रीजन बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, तो डीएनए इंसर्ट को बगल में तो नहीं पुट करते हैं, पता ही चल रहा है, तो दे विल पुट इट समवेयर इनसाइड दिस मार्कर जीन। ओके, दे विल पुट द डीएनए इंसर्ट समवेयर इनसाइड दिस मार्कर जीन, विद इन दिस मार्कर जीन। यहाँ पर भी विद इन दिस मार्कर जीन, यहाँ पर कहीं पे वो इंसर्ट को कर देंगे, डीएनए इंसर्ट को जो है प्लेस कर देंगे। क्लियर, बिकॉज द रीजन इज़ वेरी लार्ज, राइट। इनका जो टेट्रासाइक्लिन रीजन है वो काफ़ी बड़ा है, तो यहीं पर जो है दे विल प्लेस द डीएनए इंसर्ट नॉट विथ द टेट्रासाइक्लिन जीन और विद द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, बट विद इन, उनके अंदर ही वो डीएनए इंसर्ट को प्लेस कर देगा। और इससे क्या होगा, ये जो जीन फंक्शन इसका जो है नॉन फंक्शनल हो जाएगा, जीन फंक्शन हैम्पर हो जाएगा, और हैम्पर होने की वजह से हमें ट्रांसफॉर्म्ड सेल मिलेंगे, जिसको हम आइसोलेट करेंगे इनको ग्रो करके इन द प्लेट्स। ओके, दिस इज़ हाउ दिस सिलेक्शन इज़ डन। कंप्लीट ये हो गए 4 रीजन्स ऑफ दिस PBR 322 विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जानना बहुत ज़रूरी है। अब आ जाते हैं यूजफुल फीचर्स ऑफ PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर।
ओके, सो यूजफुल फीचर्स तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिकमिंग अ गुड वेक्टर, प्लाज्मिड वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा है, तो उनसे ही मिलता जुलता ये भी यूजफुल फीचर्स है जो कि हम PBR 322 में भी देखेंगे। ठीक है, तो 4 तरीके का फीचर्स है इनका। स्मॉल साइज़ है इनका, बहुत ही छोटा है, 4.4 KB। हमने प्रीवियस वीडियो जिसमें प्लाज्मिड वेक्टर एंड इट्स एग्जाम्पल्स में पढ़ा है कि प्लाज्मिड वेक्टर का साइज़ जो है कम होना चाहिए। ठीक है, गुड वेक्टर होने के लिए साइज़ होना चाहिए लेस देन 10 KB, और यहाँ पर है 4.4 KB। ओके, मतलब काफ़ी छोटा है। ये इनेबल करता है इजी हैंडलिंग, प्यूरिफिकेशन और मैनिपुलेशन में। जितना छोटा साइज़ का वेक्टर होगा उतना ही इजी होगा उसको, उसके साथ उसको मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेशन मतलब DNA इंसर्ट को डालने के लिए, प्लेस करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए। सो दिस गिव्स दिस फैसिलिटी। इसके पास 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स है, जैसे हमने पढ़ा एम्पिसिलर रेजिस्टेंस और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। दिस आल्सो परमिट द इजी सिलेक्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट DNA एज वी हैव स्टडीड अर्लियर। नाउ ये प्लाज्मिड वेक्टर मेक्स 15 कॉपीज पर सेल। एक सेल में वो 15 कॉपी मल्टीप्लाई कर लेता है, जैसे प्लाज्मिड दे डू द सेल्फ रेप्लिकेशन, राइट। सो यहाँ पर 15 कॉपीज बनाते हैं नेचुरली, विच कैन बी इंक्रीज टू 10,000 to 3,000 अगर इसका प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक किया जाए। मतलब अगर कुछ ब्लॉकिंग मेथड हम यूज़ करके इसके जो है कॉपी को बनाने की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, 1000 से 3000 तक भी कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली ये 15 कॉपीज ही बनाते हैं। एंड दिस इज द टाइप ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। ओके, सो क्लोनिंग वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर हमने पढ़ा है ऑलरेडी। सो ये एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर है। अब PBR 322 के बाद ही लेबोरेटरी में फिर से जो है उन साइंटिस्टों ने और जो वेक्टर है उनको भी इस्टेब्लिश किया है, जैसे कि PBR 325, 327, 328। ठीक है, तो उसमें से अगर PBR 327 की बात करें, दिस इज़ मोर एडवांटेजियस फीचर्स देन प्लाज्मिड PBR 322। 322 से ज़्यादा फीचर्स PBR 327 में है। ऑब्वियसली जितना आपका नंबर बढ़ेगा, मतलब आपका जो एक्सपेरिमेंटल नंबर बढ़ेगा, उतना आपके एडवांटेजेस होते जाएंगे वेक्टर। क्लियर? सो दिस 27 इज मोर एडवांटेजेस देन 322। इट मेक्स 30 to 40 कॉपीज, इमेजिन। ओके, सो पहले 322 कितने कॉपीज बना रहे थे? सिर्फ 15 ही कॉपीज बना रहे थे एक सेल में, पर सेल में, लेकिन ये 30 से 40 कॉपी बना सकते हैं एक नॉर्मल इक्वलाइज सेल में। ओके, which provides more advantages than the 322, and it is a type of expression plasmid। और 327 जो है एक तरीके का एक्सप्रेशन प्लाज्मिड है, मतलब इसमें हम प्रोटीन भी स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हमारा जितना नंबरिंग बढ़ेगा, न्यूमरल्स बढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट के, उतने जो है एडवांटेजेस फीचर्स ऐड होते जाएंगे। क्लियर? सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा, और इसको अच्छे से समझने के लिए आई हाईली रिकमेंड यू गो एंड चेक आउट दिस प्रीवियस वीडियो ऑफ प्लाज्मिड एंड इट्स वेक्टर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड वेक्टर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। Clear? And if you have liked this video, do give it a thumbs up and share and subscribe to our channel for more such related microbiology updates। इसके कंप्लीट नोट्स के लिए हमारे लिंक्डइन पेज को जरूर फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर एनी क्वेरीज, और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक में आपको बात करना है तो कमेंट करना मत भूलिए। एंड आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।